बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन बनियान मरसूस और दूसरी तरफ था ऑपरेशन सिंदूर। अब दोनों तरफ की पार्टीज की बात सुने तो कौन जीता कौन हारा। उनकी किताबों में वो जीतेंगे, हमारी किताबों में हम जीतेंगे। उनके मीडिया में वो जिताए जाएंगे, हमारे मीडिया में हम जिताए जाएंगे। मगर अगर फैक्चुअल पोजीशन पे देखें तो हमें देखना चाहिए कि वेस्ट क्या कहता है और वेस्ट क्या कहता है, ये आपके सामने ही है। अभी स्टार्ट करेंगे मुद्दे पे कि मुद्दा ये शुरू कैसे हुआ। पहलगाम का अफसोसनाक वाकया होता है इंडिया में, जिसमें 26 लोगों की जानें जाती हैं। इन जानों का अफसोस ना सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि पूरी दुनिया को है, और पाकिस्तान ने इस पे भरपूर अपना मजम्मत भी किया और अपनी एक रिकन्सिलिएशन के लिए उन्होंने ऑफर भी किया कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लें, आपको क्यों लग रहा है कि हमने कराया। इंडिया नहीं माना, इंडिया ने कहा नहीं, हम इस पर रिटेलिएट करेंगे, ये सारे नेटवर्क्स आपके पास मौजूद हैं और इस पर हम अटैक करेंगे। अच्छा, इंडिया ने मई के अंदर मिसाइल अपने दागे और तकरीबन उसमें इनोसेंट लोग हमारे शहीद हुए। उसमें 30 से 35 लोग हमारे इनोसेंट शहीद हुए, जिसमें 7-8 बच्चे भी थे। उस वक्त पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया जिस वक्त ये काम हो रहा था, और इनके बॉर्डर के ऊपर काफ़ी नुकसान इनको पहुंचा। राफेल भी इनके गिराए गए और उस वक्त का स्कोर था 5-0, जिसमें इनके 5 जेट्स गिराए गए। हैवी नुकसानात इनको पहुंचाया गया। इनके बकौल के इनको इतने नुकसानात नहीं हुए, बट अगर अब आप देखो कि CNN पे क्या चल रहा है या किसी और मीडिया में क्या चल रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि इनके जेट्स वाकई में इनको नुकसानात पहुंचा है और इन्होंने भारी नुकसान उठाया राफेल को गिरा के भी। राफेल इससे पहले किसी भी कॉम्बैट में नहीं गिरा था, इनके टाइम पे फर्स्ट टाइम गिरा है। This is the Indian side, this is the Pakistani side. We had some gaps in the north, center, south in AEW just to support it. And the IF fighters started an initial build-up that was picked up from the north and the center across IB at 0010 hours. And by that time, PAF had initiated its response within 2 minutes. By 0012, our response was activated. The IF started to get their fighters get airborne in large numbers. By the time it has come to 12:30, we were pretty sure that this is going to be the day and the time to knock some sense into these guys once again. So we commenced our multi-domain operations, the pride and joy and the new concept of war that we have. This is the picture that's getting jumbled up. We have huge number of IF fighters that are stacked up in azimuth and in vertical all across, and the PF DCA response is in position. The complete package, when it gets into shape, it is on 4 axes, and we perceive that they will have 4 incisions just to embroil. Up to 60 aircraft, including 14 Rafales, were electronically ID'd by all through our electromagnetic operational environment. We call it the EMO. So by the time they were in air, we had sorted out and contracted all fighters and accounted for. The 60 number, that augmented to 72 through their scrambles that kept on coming just to reinforce and supplement and to saturate the air defense. They thought they could do that for the Pakistani ADGE, air defense ground environment. The complete DCA package response by Pakistani side was also there. We had 42 high-tech aircraft on our side, and the strategy was to have force concentration in our selected AOR and fight at our own strength. PF fighters ensured Pakistan's air sovereignty, and because
of that, we first rerouted all civilian traffic that was about to go from Lahore, Islamabad, and this area, because we thought that this is going to be the hot plate. So we wanted safety for all the civil airliners. When they had seen this kind of a strong defense on our side, they resorted to launching their air-to-ground weapons while being CIS frontier. And as soon as they had launched the weapons, we could ID that instantly. And the chief of the air staff, as I mentioned, he was in the COC. He has been there for a couple of nights. I have seen him there. So when I said that he spearheaded and he led from the front, he really did that. And he changed the contract. We were given the rules of engagement first to deter. And as soon as this thing happened, we changed our rules of the game in the air from deter to assure kill, deny own loss. PR strategy changed. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. Ladies and gentlemen, the thing about this whole playtime was this thing lasted for more than an hour. With so many large number of aircraft, so many large number of aircraft on both sides, with so many grinds, and the flow of the BVR, the modern warfare has changed so much that the long stick, the employment is if you don't shoot, you get shot. So that is why the art was to employ them optimally, and that was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. These are the locations with the range bearing, electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 243 20 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself. And nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because and when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting, and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. And I have an audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. This is a long RT that we have. If you can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. So the idea was to just to prize you guys and to share with you how complicated this was. How this example can be taken not to do when you know that the adversary has the long stick. But I must say that it is not the equipment that matters all the time. It is the training, it is the leadership that gives you the direction and the ownership that it shows. That's what matters. And the training, the operational competence that the whole formation has. And I hope they are slow learners, but I think they can get the drift of not doing it again. Thank you. ठीक है जी, ये तो एक बात हो गई. उसके बाद इन्होंने अपने ब्रह्मोस के ज़रिए और अपने दूसरे जो इनके पास ड्रोन्स थे, पहले तो इन्होंने ड्रोन्स भेजे, 2 दिन तक लगातार ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान ने वो सारे ड्रोन्स को नाकारा बनाया और तकरीबन 600 to 700 ड्रोन्स यहाँ पे आए और इंटरसेप्ट हुए. इनके बकौल पाकिस्तान ने तकरीबन 100 से 200 ड्रोन्स भेजे जो इन्होंने इंटरसेप्ट किए. उसके बाद आ जाती है बारी के PF एयरबेस पे 10 मई को इन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमले किए, जिसमें नूर बेस थी, चकलाला एयर बेस थी, बुलारी एयर बेस थी और
झंग एयरबेस थी। इन्होंने गालिबन कहते हैं कि हमने 9 लोकेशन को टारगेट किया और मेन ये लोकेशंस थी। और इसमें बताया जाता है पाकिस्तान को हल्का फुल्का आपके कैरियर्स को नहीं हुआ, लेकिन हल्का फुल्का नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ले लिए Majority of missiles have been intercepted by the alert air defense system of the Pakistan Armed Forces. पाकिस्तान ने उसके बाद रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नाउ यू वेट फॉर आवर रिस्पांस, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया वो आपके सामने है। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहिरियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं ऐसी सफ़े बांधकर गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक, इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बांधकर, गोया वो इमारत है सीसा पिलाई हुई। कुरान करीम की सूरह सफ की यही आयत है कि जिससे पाकिस्तान की अफवाज ने इस ऑपरेशन की स्पिरिट को डिराइव किया है। मैं आपके सामने इस आयत करीमा का, इस आयत का तर्जुमा एक बार फिर पेश करता हूं। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बांधकर, गोया वो इमारत है सीसा पिलाई हुई। कुरान करीम की सूरह सफ की ये वो आयत है कि जिससे अफवाज पाकिस्तान, इस आयत का अक्स आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये कुरान करीम की वो आयत। Surely Allah loves those who fight in his cause in solid ranks as if they were one concrete structure। सीसा पिलाई हुई दीवार यानी कि एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। और कुरान करीम की इसी आयत से, इस आयत के तर्जुमे से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अपने इस हालिया जारी ऑपरेशन की एनर्जी को डिराइव किया है। जाहिर है इन अफवाज का नारा है नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा हैदरी या अली। ये निशाने हैदर अपने सीनों पर सजाने को हम इफ्तिखार समझते हैं। और सीसा पिलाई हुई दीवार इस वक्त सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं है, सीसा पिलाई हुई दीवार इस वक्त अवाम पाकिस्तान भी है। इस कौम का बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, माए, बहने, बेटियां, वो सब अपनी अफवाज के साथ है। अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान ने जवाबी वार के नतीजे में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जवाबी कार्रवाई में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। हमने इससे पहले भी आपको एक ब्राह्मूस साइट की खबर सुनाई थी और ब्राह्मूस साइट के बाद अब ये दूसरी एक और खबर सुनिए। पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट ने एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट में एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान हमला कर रहा है और पाकिस्तान इस हमले को ऑन कर रहा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जारी है
और पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मकामात, पूरे भारत में पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। और यह कार्रवाई, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब यह कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान ने बार बार कहा था कि हमें इस नहज पर ना ले जाया जाए। इसकी वजह यह नहीं है कि हम खौफ खाते हैं, अरे ये कौम या ये फौज क्या खौफ खाएगी, जिनका ईमान है कि जो रात जो लम्हा कब्र में है उससे ना एक लम्हा पहले मौत आ सकती है ना एक लम्हा बाद, और अगर वो मौत शहादत की मौत हो तो फिर जन्नत ही मंजिल है, तो फिर वो कौम क्या खौफ खाएगी। लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि आलमी अमन सबूताज ना हो। भारत ने बार बार बुज़दिली का मुजाहरा किया, भारत ने बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को मजबूर किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट लईकुर रहमान हमारे साथ है, जो कि इन सारे इश्यूज को कवर करते हैं। लईक, आप बताइएगा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये तारीख रकम हो रही है 10 मई बरोज हफ्ता सुबह 5:12। इस ऑपरेशन की ताजा तरीन तफसीलात बताइएगा। जो वसीम, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो आगाज किया गया है वो ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह करने का है। यहाँ मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान ने इस साइट का इंतखाब इसलिए किया कि ब्राह्मोस की स्टोरेज यहाँ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने का अमल शुरू हुआ था, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब में सबसे पहले जो ब्राह्मोस की स्टोरेज है ब्यास में उसको तबाह किया है। उसके बाद एयरबेस उधमपुरा को भी तबाह कर दिया गया है, पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। जो ताज़ा तरीन इत्तलात सिक्योरिटी ज़राए और मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं, 50 के करीब पाक फिजाइया के शाहीन अपने लड़ाका तैयारों के साथ फिजाओं में महवे परवाज हैं, अपने जो तय करदा और तयन शुदा अहदाफ हैं उनका निशाना बना रहे हैं। पाक फौज की तरफ से भी जो मुख्तलिफ मिलिट्री हार्डवेयर है वो अपना काम कर रहा है। मुतअद्दिद बहुत ज्यादा भारत के जो अहदाफ हैं उनको लॉक किया गया है, उनको टारगेट्स को लॉक करके निशाना बनाया जा रहा है। और जो इतलात मुख्तलिफ हवालों से तस्दीक शुदा हमारे पास आ रही हैं, बहुत वावेला है इस वक्त भारत की फिजाओं में, भारत के लोगों में, कि पाकिस्तान ने वाकई जवाब देना शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ जवाब देना शुरू कर दिया है बल्कि वो नजर भी आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की गई थी और अब बिल तमाम जो इश्तियाल अंगेजियों और सब्र तहम्मुल के मुजाहरे के बाद जारहियत का मुजाहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May $552 hours. Wait for our response. पाकिस्तान ने इनकी 26 लोकेशंस टारगेट करी, इनकी एयरबेसेस टारगेट की, साइबर अटैक किया जिसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हैवी डोज लगे हैं। इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हुई, काफ़ी जगहों की 70% कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू आया वहाँ इंडिया में। उसके अलावा जो S-400 का इनका सिस्टम था वो तबाह किया और काफ़ी और नुकसानात हुए जो कि इस तरह से काउंट करना मुश्किल है, बट जो मेन चीज़ें वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, इंडिया उसके बाद अपेरेंटली इंडिया ने यूएस को अप्रोच किया, जो कि CNN की अगर आप वीडियो देखें तो उसमें साफ दिखाई देता है। I was just talking to a source who was literally in the room where it happened, where Secretary of State Marco Rubio, I was told, played a massive role in bringing about this ceasefire, a ceasefire that on multiple times today and even yesterday, because it was in the works yesterday, perhaps over the last 48 hours, as we've been reporting, Pakistan was sort of on a military pause to give a window for diplomacy.
what I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. And then, according to Pakistan, that didn't happen. There was another exchange of rocket fire. That happened several times during the day today. And it was only in the last couple of hours before this ceasefire came into effect, just about an hour or so ago, that there was enough of a pause to call it and say that this was real, that enough diplomacy and leverage had been put on both sides to get them to stop here. Now, the key issue for Pakistan going forward is water. India has still said it's cut off the water from those 3 vital rivers from the mountains in Kashmir, vital to Pakistan, existential to Pakistan. I said, what about that? And the source said, look, this is a ceasefire. Everything works out from there. But from the Pakistan perspective, they've been up all night. From the Indian perspective, they've been up all night. There was a lot of tiredness. There was a sense that they just wanted to get this done. Otherwise, in the words of this source, it would have just spiraled into something much worse. It was now or never, if you will. It was going to get a whole lot worse. So I think a sense of relief here, but a sense of whiplash too, for what the country has been through in the past few days. CNN को अप्रोच किया और CNN ने उस बात की तस्दीक की कि US को इंडिया ने अप्रोच किया और इंडिया को ये सीज़ फायर करवाना पड़ा क्योंकि इंडिया के हाथ से मामला निकल चुका था। जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मिसाइल अटैक और इतना कुछ पाकिस्तान के पास आर्म्स एम्यूनेशन है जो कि हमारे अंदर तक, बेस तक वो टारगेट कर पाएंगे। तो इंडिया ने अपेरेंटली उसके बाद US को ऑफ़र किया कि भाई सीज़ फायर कराएं और US ने फिर मीडिएट किया। ट्रंप की ट्वीट आपके सामने। उसके बाद इंडिया का भी आप बयानिया देखें, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनका आप ये बयान देखें। उसके बाद आप इनके वो जो मिनिस्टर हैं जो कश्मीरी हिंदू हैं उनका बयान देखें आप कि हम सीज़ फायर कराने जा रहे हैं। और इंडिया की जो अवाम है, जो उनका मीडिया है, क्योंकि वो एज इट उनको प्रेजेंट कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। आप इससे 2 दिन पहले की वीडियो देखें जिसमें गौरव आर्य साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, आर्मी घुस गई है और ये हो गया है और वो हो गया, कराची पोर्ट तबाह कर दिया है। तो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल बातें इन्होंने करी, उसका जवाब ये कैसे देते? हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में मैं था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी। लोंगेवाला में बेइज्जती हुई थी। अब ये लाहौर गिरेगा, लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं आज। क्या? वेरी गुड। देखिए, एक और बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के NSA से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। लाहौर पर भारत का यह हमला, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की बातचीत, यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ट्रंप को बता दो, हमारे दोस्त को बता दो कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और लाहौर पर हमले का मतलब क्या, मेजर गौरव आर्या, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? बिल्कुल।
लाहौर पे मतलब पाकिस्तान को दिल का दौरा देना, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है। स्ट्रेटेजिकली लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर से स्टोन्स थ्रो है। लाहौर में कोर भी है, देखिए लाहौर में एक आर्मी का कोर भी है। और सबसे बड़ी बात लाहौर में कुछ होता है पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज होता है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है कि लाहौर पे अटैक हुआ है। ये चुन के टारगेट चुना गया है, मतलब जानबूझ के लाहौर पे हमला करा गया है कि पाकिस्तान को वहां मारो जहां इसको पानी ना मिले। आनंद सर, लाहौर पर अटैक, अब ये फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं वैसी तस्वीर लग रही है। नहीं, अभी तो फाइनल नहीं है, अभी तो डे 2 है। क्वार्टर फाइनल है, अभी क्वार्टर फाइनल है। पर देखिए इन्होंने 2 मिसाइल छोड़ी हरविंदर साहब पे गोल्डन टेम्पल पे, और लाहौर किसकी कैपिटल थी? रंजीत सिंह की। तो अब ये गौरव जी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। नो। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है, वो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान क्या करना है, हमने लन करना है, हमने क्या करना है, वो ऐसा कुछ विन करना है, लन करना है ना। वो ये विन कर सकते ना ये लन कर सकते, ये समझ में आ रहा है। इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया है बॉस, कुछ लर्न नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इनको ऑपरेशन सिंदूर से समझ में आ जाना चाहिए था कि भारत क्या कर सकता है। इन्हें आज दिन में समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत ड्रोन गिरा सकता है तो क्या कर सकता है। तुम्हारी सारे सिस्टम फेल हो गए, ना हमारे 24 मिसाइलें रोक पाए, ना हमारे ड्रोन रोक पाए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने यह नाकाम हरकत की है, सीधा सीधा मतलब असीम मुनीर का ईगो, उसकी कुर्सी, और उसको डर था कि उसकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए उसने ये किया है। देखिए एक मैं चीज को पलट देता हूं सुशांत जी, वो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने उनके हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स को 100% एक्यूरेसी से रोका है, ये बड़ी बात है। इवन इजराइल राइट नाउ 1 घंटा पहले इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। अब जब इजराइल जिनके ऊपर दिन में पता नहीं कितने 2500 गिरते हैं, हमास गिराता है सालों से, वो एक्सेप्ट कर ले कि 100% एक्यूरेसी इंडिया की है। आई थिंक दिस इज आई कांग्रेचुलेट पीपल लाइक गौरव एट द डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस। नहीं, और ये वक्त है कि जब आप अपने घर में आराम से सोफे पे बैठकर ये खबरें देख रहे हैं, देश के जवानों के लिए दुआ भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे। भाई ये युद्ध जैसे हालात हैं, 100% का रेशियो कहीं नहीं होता, लेकिन भारत करके दिखा रहा है। फिर भी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में हमारे देश के हर जवान को रखिए और उनको सलाम कीजिए कि वो इस तरह से रात के इस अंधेरे में हर एक हमले को नाकाम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाने गए थे आप, केक कट गया पाकिस्तान का यहाँ पर। चैतन्य मेरा बच्चा बड़ा खुश है कि आज उसके जन्मदिन के दिन आतिशबाजी हो रही है, और देखिए आतिशबाजी ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई जा रही है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को हड़काया है, तुरंत पीछे हटो। बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि तुरंत ये सब रोको, तुरंत पीछे हटो। अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है। तो अभी आपने एक खबर बताई थी कि मार्को रूबियो से बात हुई है, मार्को रूबियो ने फौरन बोला है क्या कर रहा हो, बहुत बुरी तरह पिटोगे, नामो निशान मिट जाएगा, फौरन पीछे हटो। ये बहुत बड़ी खबर। अमेरिका पहले भी कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उसका हक है, हिलना मत, कुछ करना मत, लेकिन पाकिस्तान ने गलती की। एक बार फिर अमेरिका समझा रहा है पीछे हट जाओ, हाल बुरा होगा, लेकिन अब पता नहीं समझ में आता है। गौरव आर्या, जब तक मार्को रूबियो का फोन जाएगा, वो कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तब तक तो भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक कर दिया, और अगर अमेरिका को फोन करवाना था तो आईएमएफ से करवाना था। गलत कर दिया खुद फोन करके। आईएमएफ से फोन करिए, फट से पीछे हटेंगे, और बहुत बढ़िया करा। देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे। और नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, चाइना ने, सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया कि हमारी इक्विपमेंट यूज करना बंद करो। हमने अफ्रीका से कहता हमारी काम करती इक्विपमेंट। नहीं, हमारी नाक कटा रहे हो तुम लोग। नहीं, आनंद सर, मुझे तो ये लग रहा था कि अमेरिका से पहले चीन पाकिस्तान को रोकेगा कि मत लड़ो भाई, क्योंकि तुम लड़ते हो, तुम पीटते हो, और पोल मेरी खुलती है कि रास्ते का माल सस्ते में ये चीन बना रहा है। JF-17 किसी को नहीं चाहिए, किसी को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, जो ना ड्रोन रोक पा रहा है, जो ना मिसाइलें भारत की रोक पा रहा है। चीन अलग एक्सपोज, पाकिस्तान अलग एक्सपोज। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आनी थी, IMF से उसको लोन मिलना था। जो आदमी रात में ये हमले कर रहा है उसको कौन लोन देगा? क्या उस पर भी अब संकट है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल संकट है, 100% संकट है। और अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा, अमेरिका इसकी चूड़ियां कसेगा
और एक और बड़ी खबर मेजर भाई, एक और बड़ी खबर, सियालकोट पे बड़ा हमला हो गया है। सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। लाहौर में 3 ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। यानी अब ये वॉर है बॉस, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। सियालकोट में भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहे हैं। भारत घुस गया है पाकिस्तान में, लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आर्या, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वहां पे कंटोनमेंट है, इनके आर्म्स डंप हैं, इनके मिसाइल डंप है वहां पे, और सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना आज की रात को कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ट्रंप के जरिए इन्होंने सीज फायर करवाया। अब बातें खुल रही हैं, अब सामने आ रही है कि सीज फायर क्यों हुआ, किन कंडीशंस पे हुआ, और ये वीडियो भी देखें आप, जिसमें पता चलेगा कि ट्रंप ने किन कंडीशंस पे सीज फायर किया। अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी सी बात यह है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था, और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से, हम इसे सीज फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। आप सिर्फ जो है लश्कर नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फट्टे 1 पहुंचा है, तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ S-400 ब्रीच करके पहुंचा है, या S-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, आज छुपाया जा सकता है। अगर इतनी बात, और उसके बाद क्या हुआ, भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इधर मीटिंग चल रही थी, दोपहर की बात है, उधर जो है मीटिंग चल रही थी शहबाज शरीफ की, उनके राष्ट्रपति की, उनके जो है सेना के टुकड़ियों के जो लोग थे, डीप स्टेट के जो लोग थे, और उनकी तमाम एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था हमें फुल फ्लैश फैसला करना है, और उन्होंने फैसला करके सुनाया कि हम फुल फ्लैश हमला करने जा रहे हैं। हमला किस चीज का था? परमाणु हमला था। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, उधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी। अचानक कल जो जेडी वेंस जो है खुलेआम मजाक उड़ाकर दोनों देशों का, जिसने ये कहा था कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा क्या काम, ये ऑफिशियल बयान था जेडी वेंस का। आज मार्को रूबियो बात करता है। कब बात करता है? खबर कैसे छपती है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ये मायने रखता है। डिप्लोमेसी की खबर है, कूटनीति की खबर है, ये लश्कर नोएडा की खबर नहीं है। तो ये जो कूटनीति की खबर है वो ये लिखते हैं कौन? आरटी, यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। क्या लिखता है? कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली, और ये अब कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तुम सीज फायर कर चुके हो। सुनिएगा, सिस्टमेटिकली सुनिएगा ना। शंकर ने अमेरिका से फोन पे बात करके कनेक्ट करके इस चीज को यहाँ तक ला करके सीज फायर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी बड़ा सवाल।
पूरा ग्रामर समझ लीजिए ना क्या है। अब बात की गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना, भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की, अलग बात है। उसने हमारा एस्पोरेंडेड हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात अलग है। उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया, अलग बात है। हमारे सिस्टम को हैक करने का दावा किया, वो अलग बात है। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रंप से कि अब पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद नहीं करेगा? हमारे अपने ऑफिशियल बयान जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया है उसमें ये साबित होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अगर आतंकवाद होता है तो रिटेलिएट करेंगे। मतलब साफ है कि तुम्हारे पास तो आतंकवाद के खिलाफ कोई बात ही नहीं हुई है। देखिए, इसका मतलब ये फ्लॉप है और ये बेसिकली अगर इसको किस तरह से कल प्रेजेंट किया जाएगा आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाइनीज ने अपने हथियारों को लेकर अपने ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है? ये कल लोगों के सामने आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। आरटी ने अपने एस्पोरेंडेड को लेकर क्या लिखा है जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारे इन सब बातों में, ये कल सामने लोगों के आएगी। फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? सवाल, इतनी एमेच्योरिटी के साथ तुम डील क्यों कर रहे हो? अब बात यह है कि तुमने जो है ये सारी चीजें शांत कर दी। हमने तो ये कहा था कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें पाकिस्तान की उस स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए जहां भारत में कभी वो आतंकवादी घुसाने की या आतंकवाद करने की हिम्मत ना जुटा सके। यहाँ तो अगर बराबरी पे आप छूट गए तो आप तो बहुत बड़ा देश है ना, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा देश के सामने। तो सवाल ये उठता है कि अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं। इसमें बेसिकली रूस की और ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की एक डील हो गई है। चाइना के साथ वो कह रहा है कि मैं डील कर लूंगा, उसे भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना था ट्रंप को। अब वो चाइना के साथ डील करने जा रहा, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करने जा रहा, फलस्तीन को अलग देश का स्टेटस देने जा रहा। अब भारत पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति, हथियार सब अनरिलेवेंट हो चुके हैं, ये यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हुआ। ये है कड़वी सच्चाई। अगर इसे कोई काटना चाहता है तो आए, बैठे कर। लश्कर नोएडा के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, इनकी औकात ही नहीं होती इतनी कि इनके साथ बैठकर बात की जाए। मगर ये जरूर है कि कोई और चाहे तो आइए, एविडेंस के साथ बात करूंगा। हाँ, रूस और अमेरिका की जो कुछ वक्त से करीबी दिखाई दे रही थी, जो कि बड़ी एक तरह की तस्वीर अलग निकल के आ रही है। युद्ध विराम होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। यूक्रेन का वार रुकने जा रहा है, फलस्तीन गाजा का वार रुकने जा रहा है। अब जिस काम के लिए इनको लगाया गया था वो काम खत्म हो चुका है, इसलिए हुक्म आया और इन्होंने चुपचाप हुक्म मान लिया। ना उधर का कुछ फैसला हुआ, ना इधर का कोई फैसला हुआ। आताओं का हुक्म आया और मान लिया और अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। ना डिप्लोमेसी है, ना कूटनीति है, ना पावर है, ना ताकत है। क्या बातें करते हो आप लोग? ठीक है, आंखें दिखाना, 56 इंच की छाती, तमाम तरह के डायलॉग्स हैं जो कि शायद मीडिया के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। लेकिन अब आप लोग लगे रहे। राय साहब, मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया तो मुझे इजाजत दे। आप कहते हो 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा,
धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? मीनू मैम, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है, घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? जी देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में? उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा, और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक, और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूं इसमें, कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है, उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी, इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं, कि आप कहते हैं दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया, और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण सहानी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूं, उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का। और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसमें चाइना और अमेरिका के जो मिले जुली जो एक हवाई जहाज और एक उसकी सुरक्षा, वो डिटेल है, वो मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं। जी मीनू मैम, आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली यही ट्वीट है जिसमें वो कश्मीर में बता रहे हैं कि मैं मीडिएशन करूंगा। तो अब आप बताइए, इसमें जो मैंने अभी पहले ये जो मैं IMF की बात कर रही थी, इसके बाद आप देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ा क्या किया है, कि जो अभी तक वो पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही थी किसी तरह ट्रंप को रिझा ले, ट्रंप जो नाराज चल रहे हैं। नंबर 1 तो ट्रंप ने जो खुंदक खाया हुआ था ट्रंप मोदी जी से, उसने पूरी खुंदक निकाल ली है कल अपनी। उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र। वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप के, मोदी जी वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच गए, और जहां उनका जो अनादर हुआ वो सबने टीवी के ऊपर देखा। टैरिफ वार पे चुप लगा गए मोदी जी। जो ट्रंप कह रहे हैं जी, जो करना है जी कर लो, हम तो आपके गुलाम हैं। उसके बाद हथकड़ी बेड़ियों में जड़े हुए हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है हवाई जहाजों में भर के, मोदी जी उसके ऊपर भी चुप, कुछ नहीं बोले, पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। और अब जो मौका आया, अब ट्रंप ने पूरी जबरदस्त खुन्नक निकाली और मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रंप के द्वारे गए और ये करवाया। उसमें अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रंप करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है। देश जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि तुरंत एक सेशन बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें बताया जाए कि किन किन शर्तों पे हुई है और क्या क्या गिरवी रख दिया है आपने इसके बदले में। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में फुस हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे।
डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाइल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा अंधभक्तों को, इनकी जो समर्थक हैं, उनको कितने सांसत में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंधभक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, वो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रंप साहब सामने आ गए हैं, और ट्रंप साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। वो उन्होंने अफरा तफरी में, मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ के, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रंप साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इसमें। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने, जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। On behalf of Pakistan Air Force, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I stand here with you all with deep-rooted humility and gratitude. I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. For being able to be up to the task for PF, as they say, second to none. Ladies and gentlemen, as the DG SPR mentioned, I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PF versus IF, 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security. Alhamdulillah. And it has even strengthened our commitment, the enduring commitment the PF has for stability and peace. But I have no doubt, and I can say with assurances, that the real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. And I will show you in my presentation how we try to do that. Slide. During the befitting response that we generated in our first episode,
we attrited the IF's pride, the Rafales, resulting in this entire fleet almost coming to a standstill at a ground position. You could see that they were not flying after that, at least not close to their western border. This reduction in flying to bare minimum actually reduced their liberty of action. They curtailed their options. Slide. This is the Pakistan's air defense environment. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. And I'll show you. IF initiated having no space with their manned aircraft, they initiated with their unmanned aircraft operations, targeting Pakistan's civilian population and their infrastructure. Here you see all these spots all across the swath of drones and UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. Slide. Now, PF's air defense environment is suitably configured to detect enemies' low RCS radio radar cross-section, high and slow speed platforms. That you can see that they are all visible by the time they are entering. Slide. So the anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also in Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. Slide. All drones with low cross-section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have, the data and the SATCOM link denial that we created through our indigenous systems that we have made ourselves. So whenever those systems were attacked with the soft kill, they had their error induced into GPSs and they were going haywire. And whenever they were coming closer to any civil population or civil area of high value, a direct or a hot kill was achieved on them. Slide. So here you can see they were neutralized mid-air with the hard kill whenever they were coming close to any population or any area. Being in a sparsely populated area, they were left all alone and they were applied with the soft kill. Slide. Now, after that, when the US and they were fearing PF's retribution, in utter desperation, the IF resorted to a highly escalatory, very irresponsible surface-to-surface and long-range vector application. You can see this is Suratgarh and this is our base Rafiki. This is our eastern border, and you can see the BrahMos, high-speed BrahMos, traveling almost at 3,000 kilometers per hour, who are going over there and coming, numerous, one after another. And now they were being attacked with PF's soft kill. We were inducing the errors into them, into the GPSs, which increased their CEP, the probability of missing their target increases, and hard kill was also achieved. Here you see one of the US has gone, if by the end of the slide you see one of the US has overshot the target and gone ahead. This is the radar picture. You can see that they are going, this target will, this BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. And they are being, one after another, they are coming back, crossing the borders. They are being picked, slide. They are being picked as soon as they are being launched. So real-time launch, mid-flight and terminal phase of all SSM, PF has the capability. Our air defense system, as I just mentioned, is very offensive, integrated and credible. So here you see that they are being launched from Bhuj area. This is the southern part of the country. And this is our airfield Bhulari. You must have mentioned, you have seen there were a lot of mention from our counterparts. Here you see this BrahMos is coming. It's almost reaching the target, and you'll see when we will apply the soft kill, look what happened to it. It moved left and then disappeared towards the ground. This is the radar evidence that we have that there so many of their vectors missed the targets. A lot of them did make, because they were throwing like hundreds of them. Next slide. There's one more very interesting thing that I would like you to all see. This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad.
Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there, it's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent and the larger area. So effective sensor to shooter grid that was made by PAF and the potent hardened soft kill capability that led to the missed target opportunities for lots of their surface to surface and long range vectors. Slide. Now this is another thing that I want you to all to see. This is a launch of a high speed projectile that has been launched from their area surrounding Adampur. Now these are the vectors where our radars are picking them, and it is disappearing short of Amritsar area within their own territory. I mean, this is the most absurd kind of a targeting psychology or practice that you would see, that you are not only targeting neighboring countries to your enemy, if they consider it, and your own people as well, jeopardizing their safety. I mean, this is the high-speed project impacting within own territory, and we have other pictures for that also. This is the repeat occurrence that happened the other night also. Slide. Now the PF's response, I would like you all to pay attention to that, because this is kind of a dizzy slide, but I will go one by one so that it's all clear. PF's response, PF's effective spectrum warfare, which supplemented the kinetic ops that we envisaged to take. The integrated, seamless, synchronous utilization of EW, cyber, and space domains, coupled with the synergetic all-domain offensive response, which orchestrated following a very intricate targeting mech, the mechanism that we undertook to engage the targets, of swift, calibrated, effect-based approach to operations, which was undertaken across complete swath of the Indian Western Front. Now you have seen in the video montage that the whole border was exposed by PF and our armed forces. So starting from the north across LOC till Kandla, with targets including airfields, ammo dumps, as far and as deep as Delhi. I mean, you can say something about Islamabad, which is a stone's throw distance, and Delhi, with, as the DG Aspire mentioned, some other cards up our sleeves with more ranges. The Barnala C2 Center, which is the heart of their IACCS, and other airfields, Nalia Bhuj and Kandla, as they mentioned. You can see, Google it also so that you can see the effects. PF's hypersonic missiles, unmanned force, stand-up weapons, and long-range vectors all were on the menu for the multi-domain operations that we undertook. So PF utilization of niche and disruptive capabilities struck deep inside the enemy. And there were like hundreds of drones that were there. Hypersonic, engaged targets, deep, precise, lethal, destructive. Slide. Just go back. I will explain the slide that is coming ahead. So our aim was to achieve ascendancy in effects so that we manage the escalation. Throughout the conflict of whatever length it was, we had the escalation management at our side. So within a short span of time of a couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. Next slide. This much talked about S-400 threat. As I mentioned that we were giving special attention to the Rafales in the air, so we gave our remaining part of our attention to the S-400 on ground. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar, and the
other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long-range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S400 was at Adampur was targeted like that. Next, as I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. Now these kind of pictures, loads of pictures are there for targets. So I need not to show them. They were saying it themselves, as you saw on the montage. So PF's response remained very effective, very potent, and very effect-based. Slide. Time and place of own choosing, displaying bold, aggressive, and unwavering resolve of military leadership. Now I must take a moment to mention what kind of a pressure you have when this kind of a conflict arises, and I must appreciate the leadership, both the Chief of the Army Staff and Chief of the Air Staff, both. They were both very resolute and very clear in giving instructions to all of us who are the players towards the Navy, Army, and the Air Force. And that is perhaps the reason we were so sure about it, what we have to do. In speed and direction, sometimes you have to prioritize direction more than the speed. So we had the correct directions to follow. Slide. With unprecedented reach, precision, lethality, while avoiding collateral, as we have seen in the video montage, PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971, because they crossed the international border since that, so we had to do that. Slide. While re-establishing deterrence, Pakistan negated the setting of a new normal under the hegemonistic design of a supremacist regime through swift and effective response. Slide. On a closing note, from Pakistan Air Force, PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. अब बात आ जाती है कि भाई जीता कौन। पाकिस्तान के पास प्रूफ्स हैं 6-0 के कि इनके राफेल भी गिराए, इनके जेट्स भी गिराए, इनके सिस्टम भी तबाह किया। और जो ट्रम्प 3-4 दिन पहले तक कह रहा था कि हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि उसने अचानक ठानी कि इंटरवीन करते हैं। किसी की तो कॉल गई है, किसी की तो बात हुई है, और वो डेफिनेटली बात सबको पता है कि वो इंडिया की ही हुई है। अब इन चीज़ों को आप अगर पाकिस्तानी और इंडिया मीडिया में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। आप बेहतर है कि ग्लोबली देखें और समझ में आए आपको कि हुआ क्या है और इंडिया क्यों गया है, क्योंकि उतना उसने भारी नुकसान उठाया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इतनी चीज़ें जब हो जाती हैं और बंदा फेस सेविंग के लिए फिर जगह ढूंढता है, और वो जगह इनको यूएस में मिली। उसके बाद अब ये खुद अपनी किल्ली उड़वा रहे हैं। जो इनका मीडिया था वो बाद में अपनी माफिया खुद करवा रहा है कि भाई जो हमने उस दिन कर दिया वो बहुत ही गलत था, वो नुकसान हुआ, उससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि आप जब इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग करते हो उस पर नुकसान आपका अपना होता है, और इंडिया ने ये बिल्कुल किया और इंडिया ने इसका खमियाजा भी भुगता। दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। तो जी ये था ऑपरेशन, इसको डॉक्यूमेंट करना बड़ा ज़रूरी था। और क्योंकि आज से कई सालों बाद आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक फिल्म भी बनेगी, अक्षय कुमार उसको लीड करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान को तहस-नहस कर देंगे, कराची पोर्ट भी तबाह कर देंगे और पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर उस फिल्म में तबाह कर देंगे। जबकि एक्चुअल में जो फैक्चुअल पोजीशन है मैंने आपको बताई है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो रिपोर्टेड है वो बता रहा हूँ। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि पाकिस्तान के मामला हल हों और चीज़ें सिमत में दुरुस्त सिमत में आए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।